good evening to one and all present here. I, Riya, And I, Sakshi. the host for the evening, welcome you to the TIES Open Mic, presented by the Urban Typewriter in collaboration with the Press and Media Club of Technia Institute of Advanced Studies. Riya, open mic. What is it? What is open mic? Open mic कुछ बना नहीं. Open Mic एक platform है for the writers who can share their poetry, short stories and microfiction. It gives us immense pleasure to welcome our chief guest, Mr. Siddharth Pabbi, the community head of the Urban Typewriter. The guest of honor, Mr. Ahmed Faraz and Ms. Himshweta, they will soon join us. Good morning, everyone. Welcome to the TIS Open Mic. The Urban Typewriter is the fastest way to self-publish. It's a community of writers by the writer for the writer. We are also a talent discovery platform. So whoever wants to get self-published, you can definitely connect and collaborate with us. Today we are here to, we would like to invite you all for this open mic. And we would like to thank TIS, Press and Media Club and Vyakt, our own very literature club, to organize this wonderful open mic. Welcome you all. This seems to be a very like a journey, so we can appreciate poems, storytelling, and art and culture. So please welcome all the participants and let's enjoy. Please welcome Miss Sonia Batra. She is the one who is helping us to organize this, and Tushar Chadda. It's a pleasure having you guys here, and a round of applause for Tushar and his crew member. The whole 30 people out of your college is actually has been working for 10-15 days to bring this whole thing up, and please cooperate. And please, ma'am, if you... It's all for the students only, so I hope that you will enjoy this event, and I give my best wishes for the participants. So I want this event to be a grand one. So let's celebrate this. Let's start up with the event with the lighting of the lamp. I would like to call first contestant, Mr. Ayush. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष देलीवाल और मैं आज एक ऐसे मसले पे कविता बोलने जा रहा हूँ जिस मसले के बारे में हम अपनी डेली लाइफ में सुनते आए हैं, और एक ऐसे समाज के बारे में बोलूँगा जिसका शायद हम भी एक हिस्सा हैं। 16 दिसंबर 2012, 3 जनवरी 2013, 21 जनवरी 2014, 28 जून 2015, 31 अगस्त 2016, 28 दिसंबर 2017, 27 जनवरी 2018। कुछ लोगों को ये सिर्फ तारीख दिखेगी, कुछ लोग इन तारीखों को सुनकर सहम जाएंगे, कुछ लोग सड़कों पे आकर मशाले जलाएंगे, कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर नारे लगाएंगे, कुछ लोग बातों के ज़रिए अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, और कुछ लोग दूर खड़े होकर इन हादसों पर अपनी आग उगलेंगे। कुछ लोग कुछ तो करेंगे और कुछ लोग कुछ नहीं। दोस्तों, ये तारीखें जो मैंने आज आपको शुरू में बताई है, ये सिर्फ गिनी चुनी तारीखें हैं। ऐसी कई हज़ारों लाखों तारीखें हैं जो सिर्फ आज एक तारीख बन के रह गई हैं। इन मसलों पे बातें तो होती हैं, लेकिन सोशल साइट्स पर, और ऐसा नहीं है लोग इन मसलों को याद नहीं करते हैं, बेखौफ करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद ये तारीखें एक नई तारीख में बदल जाती हैं और हमारी लड़कियां फिर हैवान के हवाले हो जाती हैं, फिर हैवान के हवाले हो जाती हैं। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। A 7-year-old girl was allegedly raped and murdered by her maternal uncle.
दिल्ली में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है। दिल्ली के एक स्कूल में 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। पाकिस्तान में 8 साल की एक बच्ची जैनब को अगवा किया गया, उसके साथ रेप किया गया। आज बाबा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आश्रम से 41 लड़कियों को कल रात को छुड़ाया गया है। इस जालिम दुनिया का मैं हूँ जालिमा, है भ्रष्ट मेरी आत्मा, करना पापियों का खात्मा, साथ मेरे है परमात्मा। जनाजा निकलते हैं हर एक इंसान का, चाहे वो 8 महीने या हो 8 साल का। लिखना नहीं चाहता पर लिखने पर मजबूर हूँ, पूछूं आज खुद से सब हवस के फितूर क्यों। लिखना नहीं चाहता पर लिखने पर मजबूर हूँ, पूछूं आज खुद से सब हवस के फितूर क्यों। या यूँ कहूँ कि देखने का नज़रिया अलग है, वो भी तो लड़की किसी और की भी बहन है। या एक जैसे जिस्म पर सोच अलग है। जल्लाद है सारे मैं थूकता समाज पे, ये जंगली जानवर बस भूखे जिस्म के। जल्लाद है सारे मैं थूकता समाज पे, ये जंगली जानवर बस भूखे जिस्म के। मैं पागल हूँ ये समझना नहीं चाह रहा, ये पकड़े जाए तो चलता है जग सारा। ये ट्रेंडिंग की बात नहीं मेरे जज्बात है, ना पकड़े जाए तो बस जलती मशाल है। विचार है ये लोगों के, ये रहते अंधविश्वास में, और ये दुष्ट भी सारे संत के लिबास में। विचार है ये लोगों के, रहते अंधविश्वास में, और ये दुष्ट भी सारे संत के लिबास में। ये सारी बातें मेरे दिल की ही भड़ास है। क्यों हमारी लड़कियाँ इतनी परेशान हैं? क्या ये रीति रिवाज है कि लड़कियाँ बोझ और लड़के भगवान हैं? ये उन लड़कों की भी बात है जो ढंग से दुनिया ना जाने पर उजाड़ते संसार है। पता नहीं क्यों बदलती नहीं है दुनिया। क्या ये सोच है या सोच की ही हैं गलतियाँ? क्या ये सोच है या सोच की ही हैं गलतियाँ? कहाँ है भगवान से पूछते हैं ये लोग, कहाँ है भगवान से पूछते हैं ये लोग जिस पर उड़ाते हैं लाखों करोड़। क्यों नहीं बचाता अपनी बनाएंगे इस दुनिया को? क्यों देखते रहता है तमाशा और क्यों बन जाती है तमाशे की तमाशीन? क्यों नहीं बचाता अपनी बनाएंगे इस दुनिया को? क्यों, आखिर क्यों और कब तक? क्यों, आखिर क्यों? जयपुर में बेटियों के बलात्कार का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक ही परिवार की 8 बेटियों में से 4 के साथ रिश्तेदार कई साल से बलात्कार कर रहे थे। चलते ऑटो में एक महिला के साथ गैंगरेप किया, और सिर्फ इतना ही नहीं, महिला के 9 महीने की बच्ची को सड़क पर पटक कर मार डाला। Some shocking news: a 20-year-old drunk man raped a woman in broad daylight on the footpath of a road. ये जनता भी ऐसी है, क्यों अब ऐसी घूमती है? जब सबके सामने एक बेटी, एक बहन, एक माँ या कहूँ उसमें से एक औरत तमाशा बनती है। ये जनता भी ऐसी है, क्यों अब ऐसी घूमती है? जब सबके सामने एक बेटी, एक बहन, एक माँ या कहूँ उसमें से एक औरत तमाशा बनती है। क्यों दहेज के बदले ये बिकती हैं? क्यों सवाल कभी ख़त्म नहीं होते? क्यों कोई समझता नहीं? क्यों कोई भगवान रोकता नहीं? क्यों कोई मर्द अपनी हवस को अपने पास नहीं रखता? क्यों कोई मर्द अपनी हवस को अपने पास नहीं रखता? क्यों, बस क्यों है ये बातें? क्यों, बस क्यों है ये बातें? क्यों, आखिर क्यों और कब तक? कभी कभी मैं खुद से ही पूछता हूँ, क्या मैं भी इस घिनौने समाज का हिस्सा हूँ, या हमारी सोच ऐसी बन गई है? खैर, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जलती है मशाले उनकी मौत पे, रोती हैं बेटियाँ फिर से खौफ में। ऐ सुन इंसान, कहाँ है तेरा ईमान? क्यों नहीं रोकता अपने अंदर का हैवान? क्यों, आखिर क्यों और कब तक? थैंक यू। Please give a big round of applause. It was really an emotional act. Moving on, our next contestant is Benita. मैं बोलने वाली हूँ बस के ऊपर. बस is a word which I want to apply for racism. So here I go. Unity in diversity. क्या सुना है आपने? लोगों को उनकी अपीयरेंस पे जज करना क्या सिखाया है आपको आपके माँ बाप ने?
कहते हैं लोग है टेररिज्म सबसे बड़ा पाप, पर रेसिज्म को फेवर करके आप भी तो कुछ कम कर नहीं रहे हो जनाब। वो देखो चीनी जा रही है, चलना छेड़ते हैं, थोड़ा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आती तो होगी नहीं इसे हिंदी। अरे चुप, देवनागरी पढ़ के बड़ी हुई हूँ मैं भी 2 हाथ जोड़ के बोलती हूँ नमस्ते जी। हूँ भारतीय सिटीज़न और डालती हूँ वोट, क्या माथे पे चिपका के चलूँ अपने सारे कागजी रिपोर्ट। 132 करोड़ से भी बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है हमारा, सबकी अपनी भाषा है, सबके अपना एक अलग अलग वस्त्र है। ये खूबसूरत वैरायटी ही तो हमारे भारत का एक पावरफुल शस्त्र है। पर हैं कुछ लोग जिनसे झेली नहीं जाती ये खूबसूरती, करते हैं वो लोगों में भेदभाव। इसीलिए तो संविधान ने बनाई है राइट टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो हो जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस या फिर अनटचेबिलिटी। है क्राइम लोगों में भेदभाव करना। क्या समझ आई तुम्हें गवर्नमेंट की ये नीति? तो थोड़ी सी तो शर्म कर लो, किसी को चिंकी बुलाने से पहले ये तो समझो, जब भी गूंजता है हमारे कानों में नेशनल एंथम, खड़े होते हैं हम भी प्राउडली। सफ़ेद, केसरी और हरा है हमारा गुरूर भी तिरंगी, तो क्यों समझते हो हमें फिरंगी? ये लोगों ने क्या सोच बना रखी है कि हर किसी को उसके अपीयरेंस पे जज करना है। तू लंबी है, तू है छोटी, तू काली है, तू है मोटी और तू है हड्डी। अरे तेरी तो आंखें ही नहीं दिखती। मत रखो इतनी छोटी सोच, तुम्हारी इन्हीं सोचों से लग रहा है बहुतों के दिल को चोट। मर रहे हैं लोग तुम्हारी ये बातें सुनकर, थोड़ा सा तो डरो। गवर्नमेंट ने निकाली है नीति, बुलाओ किसी को चिंकी और जाओ जंजीरों के पीछे। तो दोस्तों संभल जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, अपने ज़बान पे काबू रखो। किसी और के लिए ना सही तो इंसानियत के लिए डरो। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, कहते हो ना तुम भी, तो क्यों फैला रहे हो ये रेसिज्म का कबाड़ा? बस अब बस करो, किसी के लिए ना सही तो इंसानियत के लिए डरो। थैंक यू। And I personally want to tell you guys, there's a hostel back there, Tibetan residents का, and वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी रहते हैं। And I will not take the names, यहाँ ऑडियंस में भी I can see 2-3 people जिन्होंने मेरे सामने उनका मजाक उड़ाया है। Guys, if they have small eyes and if they are chinky, please don't discriminate. They belong to India only, and even if the Tibetan refugees, if they don't belong to India, but हमारी गवर्नमेंट ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, that means वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So stop calling chinky. Please अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दो। Thank you guys. And yes, I am in 5th semester. Bye. Thank you so much, Vinita. Next, we have Nikita Nasa. What if I was dead? After the attempt I made of killing myself, slitting my wrist because I felt alone, broken and shattered. My screams were at the top of my lungs. No one was there to listen. And I wanted to go, leaving all the troubles of my life. Grabbing the blade, and there was the pain. Lying on my bed with blood running down my hands. Coming into the emergency department, getting stitched or stapled up, but I failed to do it well enough to die. What if I was dead? Dead after a death. Weep not, weep not. I tried to convince myself, but she was gone. Bursting into tears, broken into pieces, falling against the wall, I made another attempt. It was hard to fight. Poison disrupting my nerve cells, causing me to suffocate, but couldn't lead me to death. Once again, I was safe. Now, I have been chained to anchors, I have been tortured in my mind, I have been stopped from talking, I have been stopped from believing, but the idea of death no longer keeps me safe. In all the years I have been in love with everything beautiful and the flawed, I came through and so can you, for life there is always hope. What if I was dead? After the first attempt I made, I would have died colorless, dishonoring the death's grace. Thank you. Next, we have Anjali Mehta. A very good afternoon to all of you. Myself Anjali Mehta from MBA second year. So today I am here to give few lines on the problems faced by a lady in her life. From her childhood to the end she did, the problem faced by her in her life. So there are few lines on which she faced difficulties. है सब्रों की देवी, है सब्रों की देवी, बनाया है उसको सब्रों की देवी, अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी, अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। रब ने बनाया है उसको सब्रों की देवी, अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी, अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी।
सोमवार से शुक्रवार रखती है उपवास कि एतवार को मिल जाए उसको उसका प्यार। सोमवार से शुक्रवार रखती है उपवास कि एतवार को मिल जाए उसको उसका प्यार। अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी, अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। करती है सबसे प्यार पर नहीं मिलता उसको उसका अधिकार। करती है सबसे प्यार पर नहीं मिलता उसको उसका अधिकार। अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी, अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। बन जाती है बहू, बन जाती है बहू संस्कारों वाली, बन जाती है बहू संस्कारों वाली, पर नहीं मिलता उसको उसका अधिकार। अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। पहन के दुखों का मकौटा, पहन के दुखों का मकौटा, दिखाती है खुश होके। पहन के दुखों का मकौटा, दिखाती है खुश होके, पर नहीं है वो खुश। अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। करती है सबसे प्यार पर नहीं मिलता उसको उसका अधिकार। अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। बन जाती है बहू संस्कारों वाली, पर नहीं मिलता उसको उसका अधिकार। अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। सल्यूट है मेरा हर एक उस नारी को जो है इस प्रकार। अ लेडी कॉल्ड अ भारतीय नारी। Sorry guys, it's for all the ladies which have faced these types of problems in her life from her childhood till the end she did. And it's a reality faced by each and every lady, whether it's a modern, whether it's a traditional, every lady have to face this problem at one stage of life. Yeah, it's a reality, so thank you so much. Next we have Akanksha Suyal. हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा। राइटिंग मेरे लिए सिर्फ पहले से एक शौक़ था। कभी इधर लिख लिया, कभी उधर लिख लिया, कभी कुछ बट टेक्निया में आके फ़र्स्ट टाइम व्यक्त सोसाइटी है, उसके लिए फ़र्स्ट टाइम खुद एक पोइट्री लिखी। तो नहीं, एक्चुअली लगा कि इसमें कुछ बात है, अपनी फीलिंग्स को बयां किया जा सकता है और वो भी खूबसूरत शब्दों में। आज मैं अपनी पोइट्री के थ्रू आपकी और होपफुली अपनी लाइफ का एक छोटा रूप प्रेजेंट करूंगी एंड आई होप आप सबको वो पसंद आए। जस्ट लाइक अ ट्रेलर, आपका, मेरा और हम सब का सफ़र। ज़िंदगी का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जब माँ ने जन्म दिया। जब पापा ने पहली बार गोद में पकड़ा तो लगा दुनिया जीत लेंगे। छोटे थे उस समय, कदर नहीं थी जज्बातों की, आज बड़े हो गए तो याद आती है उन रातों की। सफ़र तो लंबा होना ही है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, पर उस सफ़र को खूबसूरत बनाना शायद उसी में तो सारी बात है। जुदा तो सब होते हैं इस राह में, बात तो तब बने जब शुरुआत भी साथ हो और मौत का काफिला भी। प्यार तो सबको मिल जाता है और यहाँ बैठे शायद हर लोगों को दोस्ती भी, पर पूछना उनसे चाहिए इस सफ़र की तकलीफ़ों के बारे में जिनको खाने के लिए रोटी तक नहीं। कुछ ज़्यादा और कुछ को कम मिलता है, खुशी और गम दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठुकराता तो हर कोई है एक दूसरे को, अपने अंदर झांकने का मौका बहुत कम को मिलता है। तकलीफ़ें तो हर कोई बारीकी से गिनता है, ज़िंदगी जीना शायद इसीलिए अनदेखा होता है। सफ़र कैसा भी हो, खूबसूरत बनाना तो अपने हाथ में है, फिर क्यों ये दिल सिर्फ बुरे दिन गिनता है। अपने लिए जीना तो सबने सीखा है, कभी दूसरों के लिए तो जी के देखो यार, कसम से उसी में इस सफ़र का असली मज़ा है, कसम से उसी में इस सफ़र का असली मज़ा है। थैंक यू। Next we have Upasna Sharma. हाय एवरीवन, मेरा नाम उपासना है और पोइट्री मैं बहुत टाइम से लिख रही हूँ, पर पोइट्री लिखने का मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं था कि मैं कुछ बहुत ही बेमिसाल लिखूँ, मगर कुछ ऐसा जो लोगों के दिलों को छू जाए, कुछ ऐसे लफ्ज़ जिसे लोग ना सिर्फ सुने और पढ़ें मगर महसूस करें। तो शुरू करती हूँ। फीलिंग माई वे थ्रू द डार्कनेस, फीलिंग माई वे थ्रू द डार्कनेस, guided by a beating heart. It's incredible how I met you. Tangled in your love, I found my solace. This world never seemed so beautiful before. I smile like a maniac. I dance to your tune. Insane in this feeling, I breathe the moments. For your presence, keep me alive. Both our lives have their own path, but when we are together, the paths join. And I couldn't have found a more perfect path to walk on than with you. Thank you. Next we have Vibhanshu Thakur. मैं विभांशु ठाकुर आज आप सभी के सामने एक पीस पेश करने जा रहा हूँ, तो जिसका शीर्षक है नए ज़माने का पुराना आशिक। और इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। मेरी कज़न ने
3-4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें 2 लड़कियां बात करती हैं, तो एक पूछती है कि तुझे कैसा आशिक चाहिए, तो दूसरी का जवाब आता है कि मुझे पुराने ज़माने का आशिक चाहिए, क्योंकि उनकी आशिकी हमेशा अमर रहती है। देयर लव इज़ इमॉर्टल। तो मैं शुरू करता हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, और तुम भी किसी को मत बताना, पर हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। और इससे पहले कि तुम्हें मेरे प्यार से प्यार हो जाए, तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा पुराने ज़माने का हूँ। भरी महफिल में हाथों में गुलाब लेके घुटनों पे बैठकर प्रपोज करने का आइडिया मुझे भी बहुत क्यूट लगता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ चलते चलते तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दूँ, और तुम अपनी पलकें झुकाकर अपने प्यार का इजहार कर दो, क्योंकि मुझे वो वाला प्यार पसंद है जिसमें शब्दों को बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तुम कहोगी तो चल देंगे तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंदीदा मूवी देखने, पर जब मैं कहूँगा तो क्या सुनाओगी मेरी पसंदीदा गाने और कविताएं तब तक, जब तक मैं तुम्हारी गोद में सर रख कर सोना जाऊं, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा पुराने ज़माने का हूँ। जब दूर चली जाओगी तो ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेजेस करूँगा और तुम्हें निहारने के लिए वीडियो कॉल्स भी कर लूँगा, पर जब वापस आना तो लेती आना उन गुलाबों के साथ कुछ खत, जिनमें वो बातें लिखी होंगी जो हमने फ़ोन पे ना की हों। बहुत ख़ास होंगे वो खत मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे फ़ोन की मेमोरी तक सीमित नहीं रहेंगे, मेरे दिल के करीब होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा पुराने ज़माने का हूँ। ये हुकअप्स ब्रेकअप्स टिंडर के ज़माने में मेरा दिल आज भी पार्क में घूम रहे बूढ़े दादा दादी को देखकर मुस्कुराता है। जब तुम मुझे खाना खिलाती हो अपने हाथों से तो बहुत अच्छा लगता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये जवानी के निवालों का प्यार बुढ़ापे में दवाई के पुड़ियों के साथ भी जवान रहे। अब मेरा दिल आज भी पता नहीं क्यों DDLJ के गाने गुनगुनाता हूँ। रहा मैं भी हमेशा से शहर में हूँ, पर मुझे ये नशे से चढ़ गई होए, ये नशे से चढ़ने वाला प्यार आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि प्यार इश्क मोहब्बत कोई नशा नहीं है, वो तो एक इबादत है। और अब जब तुम मुझे इतने अच्छे से जान चुकी हो तो सोच लेना, क्योंकि आज के ज़माने में जब सब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टोरीज अपलोड करने में बिजी हैं, मैं तुम्हारे साथ अपनी कहानी लिखना चाहता हूँ। और मेरी कहानी कोई ट्राइबल टाइनी टेल स्टोरी टाइप नहीं होगी, वो एक उपन्यास होगी, नॉवेल, तेरे और मेरे इश्क की उपन्यास, तेरे और मेरे प्यार की मोहब्बत का उपन्यास, क्योंकि मैं थोड़ा सा पुराने ज़माने का हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव अचल जैन। कहते हैं समुंदर के सुकूत की बात अलग है, समुंदर के सुकूत की बात अलग है, लहरों में वो ठहराव कहाँ। समुंदर के सुकूत की बात अलग है, लहरों में वो ठहराव कहाँ। जो बातें निगाहों ने कह दी, जो बातें निगाहों ने कह दी, अल्फाजों में वो बात कहाँ। प्रणाम, मेरा नाम अचल जैन है और मेरी कविता का शीर्षक है मरहम लगा रहे हैं टूटे दिल पर मगर। मरहम लगा रहे हैं टूटे दिल पर मगर, मरहम लगा रहे हैं टूटे दिल पर मगर, मोहब्बत में वो पहला मुस्कुराना याद आता है। गौर से ना देखा तूने मेरी हस्ती को मगर, गौर से ना देखा तूने मेरी हस्ती को मगर, पर हर रोज़ सच के तेरे सामने आना याद आता है। मायूस तुझे देखा तो ना जाने क्या होता था, मायूस तुझे देखा तो ना जाने क्या होता था, वो जोकर बन के औरों की नज़रों में तुझे हंसाना याद आता है। बालकनी में ना देखा जब तक उसका अब तलक, बालकनी में ना देखा जब तक उसका अब तलक, हर रोज़ उसके घर के चक्कर
काटना याद आता है। स्कूल का सीन, रोज़ मार खाता था मैम से तेरे सामने, रोज़ मार खाता था मैम से तेरे सामने, उन सुर्ख गालों में बालों को संवारना याद आता है। तेरी कॉपी तेरे टिफ़िन तेरे बस्ते से प्यार किया मैंने, तेरी कॉपी तेरे टिफ़िन तेरे बस्ते से प्यार किया मैंने, मेरा वो तेरी बेंचों को चूम जाना याद आता है। क्या कहूँगा तुझसे और कैसे कहूँगा कुछ भी, क्या कहूँगा तुझसे और कैसे कहूँगा कुछ भी, रोज़ दोस्तों में बैठकर वो प्लान बनाना याद आता है। मरहम लगा रहे हैं टूटे दिल पर मगर मोहब्बत में वो पहला मुस्कुराना याद आता है, मोहब्बत में वो पहला मुस्कुराना याद आता है। थैंक यू। We present to you Zenny and Piyush. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, ओ हो इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, कहीं इश्क दी मर्जी है कहीं रब दी मर्जी है, कहीं इश्क दी मर्जी है कहीं रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ
सो स्टार्ट करिए पूर्वा, क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है. हाँ जी, मैं शुरू Yeah, करती yeah. हूँ. What a mind-boggling performance by our contestants. So I would like to put forward you all for a. नेक्स्ट परफॉर्मेंस शायद बुलाना पड़ेगा हमें. नहीं, इससे पहले हम इनको entertain कर लेते हैं. ओके, एंटरटेनमेंट क्या समझते हैं आप लोग? क्या होता है एंटरटेनमेंट? आप अब मेरे को देख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए? एनीवन? क्या डांस करूँ? पोल डांस? क्या मिमिक्री करें? एंटरटेनमेंट मांगता है तो देता है. मैं कैसे हैं आप लोग? एक बार ताली हो जाए. अच्छा है. ओपन माइक हो रहा है. क्या ओपन माइक हो रहा है? कुछ आइडिया नहीं है. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा किस वे में आ रहा है वो पता नहीं है. अच्छा है. लड़कियां जब आती है तुम ताली बजाते हो. हमारे लड़कों में क्या कमी है? क्या कमी है? सबसे पहली बात, 377 के बारे में सबने सुना है. सब जानते हैं, बहुत खुश हैं. कुछ तो इतने खुश हैं कि लड़के भी साथ में बैठे हैं, देख रहा हूं मैं. आजकल फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह एक जोक बहुत पॉपुलर हो रहा है. नाइट स्टे नहीं हो पा रहे हैं लोगों के. घर में फोन करते हैं, क्या करे, कहाँ है रे, कहाँ गई? मैं अपने दोस्त के साथ हूँ. कौन दोस्त? अरे पूजा है ना वो. पूजा, अच्छा है. ए पूजा के साथ भी नहीं रहने देंगे तुझे. क्यों? LGBT, तुम तो समझ ही गए होगे. अच्छा है. So ladies and gentlemen, thank you for this. Give a big round of applause, guys, please. और एक बात याद रखिए guys, यहाँ पे स्टेज पे जो आ रहे हैं कंटेस्टेंट्स, जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो बोल रहे हैं, ठीक है? तो सबकी परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी बहुत तालियां हो जाएं. कैसे ताली बजाएंगे एक बार दिखा सकते हैं आप लोग मुझे प्लीज? बिल्कुल इस तरह, ठीक है? चाहे कैसा भी एक्ट हो, आपको ताली बजानी है, ठीक है? ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो आई प्रफुल्ल And I, Purva, welcome you to the Urban Typewriter present TIAS Open Mic in collaboration with Vyakt Literature Club of Technia Institute of Advanced Studies. Give a big round of applause, guys. ताली नहीं रुकनी चाहिए. Shubhangi Chauhan, please give a big round of applause, guys. I'm Shubhangi Chauhan, a second-year journalism and mass communication student. Writing has been a very intimate thing to me. I write when I'm at my high. I write when I'm at my low. On normal days, I contemplate so much that I eventually getting at a point when I'm at my high or at my low. It is no surprise that I'm here in front of you to narrate, to deliver, to express something that I feel is called the wreckage of romance. There is no romance left in the world. The only wooing one sees is the politicians doing it to their electorates. I mean, yeah, no political jokes, but how romantic. I'm not saying men don't put in effort. A friend of mine read Alexander Pope's Rape of the Lock, and he was inspired to send his girlfriend hairs after he had a haircut. She freaked out and accused him of being a sociopath. Today, some cut head hairs, tomorrow, who knows? In days gone, when men used to burst into poetry, when they saw their beaming light of lives. In days gone, when I love you was not just in a moment, but meant an entire lifetime. In days gone, when men fought for love and for commitment. I read it somewhere and I will quote, "There are too many mediocre things in the world, and love should not be one of them." So in this era, what are we left with? We are left with a modern day lover. And here is my poetry about the same. A modern day lover doesn't write off a love letter that lasts an eternity. He doesn't have a Bible or a Mecca or any cultural affiliations or roots. He's a winged creature, a vagrant. He wants to explore. He didn't lose a girl because caste didn't approve or dying mother's promise. He lost her because he fears she's stronger. Modern day lover doesn't ask you to forget him under the moony night. Instead, he deletes you from the friend list, unfollows from Twitter, and blocks you and stalks you from other means. He says, "You know what, I'll be right back," but never returns.
He also tells you in the beginning that he doesn't want a baggage, a liability, a tag. He makes you mark, I agree to the above terms and conditions, so that you know you're playing with fire. Modern day lover doesn't dwell on one affair, one romance that lasts a lifetime. Making love to a woman is their skill, but making one woman feel loved. Modern day lover is Tindering in disguise. I don't think we give due credit to this modern day dating app where your self-respect is just a swipe away. Modern day lover goes out gaming with their bros. And you can wait for the double ticks, my love. Modern day lover is confused, but he'll tell you, I like the way it's going. Should you spot a modern day lover, and I know you will, bring them close, tell them in their ear, you aren't worth it. Thank you. So next coming up is Sunny Mudgal. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सनी और आज मैं यहाँ पोएम सुनाना है जो मैंने 1 साल पहले चिल्ड्रंस डे पे लिखी थी। टाइटल है बच्चा। शुरू करता हूँ। सपने हैं आँखों में, खुशी से है झूमता, बनूंगा लेखक बड़ा होकर, लिखता है वो डायरी में। माँ से है कहता, एक कॉपी पेन दे दो, पापा से पूछता बताओ क्या लिखूँ। शुरू किया उसने लिखना, कहानियाँ कविताएं निबंध। तारीफ़ें जब मिलनी शुरू हुई, चलता गया उसका लिखना। बड़ा होता गया वो, साथ ही उसकी कला। लिखते हुए समय वो रहा एक छोटा बच्चा, वो रहा एक छोटा बच्चा। थैंक यू। So next coming up is Yatin Makkar. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माई सेल्फ यतिन मक्कर। आप लोगों ने ट्रांसजेंडर्स का नाम तो सुना ही होगा। उनको कभी भी इज्जत नहीं मिलती। तो मैंने एक दिन किसी ट्रांसजेंडर से पूछा कि वो सड़क पर बैठकर रो रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। तो उसने मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कविता लिखी, तो मैं आपके सामने पेश करूँगा। बचपन में जब जन्म लिया, मिली बहुत लानत मुझको, पिता ने नकार दिया, सिर्फ मेरी माँ ने मुझे प्यार दिया। हर दिन आते थे वो, खरी खोटी सुनाते थे वो, माँ कुछ ना कहती बेचारी, माँ को भी सताते थे वो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे अक्ल बढ़ी, धीरे धीरे समझ आया कि समाज में मेरे जैसे ने कभी सुख ना पाया। 3 साल की उम्र थी जब पिता ने नकार दिया, माँ क्या करती बेचारी, माँ ने भी घर से निकाल दिया। फिर क्या, ना था घर ना थे रिश्तेदार, पर जो ना थे अपने, उन्होंने ही मुझे दिया प्यार। वो थे मेरे जैसे, ना थे समाज के जैसे, उन्होंने ही चलना सिखाया, उन्होंने ही खाना सिखाया। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, जानने को मिला कि हमारे जैसा समाज में कोई नहीं और हमारा कोई लिंग भी नहीं। हमें काम तो मिलता है लेकिन इज्जत का नहीं, हमें पैसे तो मिलते हैं लेकिन इज्जत से नहीं। आज भी जब भारत आज़ाद है, हम जैसा कहीं कोई बर्बाद है। थैंक यू। Thank you so much, Yatin. Now next coming up is Simran Mishra. So please guys, cheer her up. Cheer up guys, please. शुरुआत एक शायरी से करते हैं। क्या वजह दे तुझे याद करने का, क्या वजह दे तुझे याद करने का, ये इश्क है मेरी जान, नाम ना दो इसे ज़िंदगी बर्बाद करने का। मेरा नाम सिमरन है। जो पोएम है ये बेसिकली 2 लोगों के बीच की कॉन्वर्सेशन है जिसका टॉपिक बहुत कॉमन है, लेकिन इनकी बातें शायद नहीं लगे आप लोगों को। मुकम्मल। तुमने कहा था जिंदा दिली से इश्क हमसे करते हो, हमने कहा कहाँ जनाब टूटे हुए कांच में शबाब भरते हो। ज़माना नहीं अपनाएगा हमें अगर हामी भी भर दूँ मैं। उन्होंने कुछ मुस्कुराते हुए कहा हमसे कि अगर इश्क हमसे करते हो तो क्यों ज़माने पे इतना इकरार करते हो गया इश्क हमें भी, अब बताओ आगे की बात, क्या फरमाइश है तुम्हारी इस दुनिया से।
कहते बड़ी नज़ाकत से हमें कि ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ फरमाइशें मुकम्मल नहीं होती, ख्वाहिशें होती हैं। वो बोले कि इश्क बेपनाह करेंगे तुमसे, तुम क्यों ज़माने से यूं डरते हो। हम बोले कहाँ कहाँ, अगले पल का ठिकाना नहीं, कहाँ ताउम्र साथ निभाने की बात करते हो। डर लगता है हमें कि क्या होगा जब मज़हब की बुनियाद पे इश्क मुकम्मल ना हो पाएगा हमारा। वो कहते मेरे महबूब, वो भी क्या मंजर होगा जब तेरी कब्र के ऊपर मेरी जलती चिता की राख होगी, तब हमारी रूहें एक होंगी और दूरियां सब खाक होंगी। हमने कहा कि जनाब बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, पर मज़हब की जंजीरों में कुछ जकड़े हुए से हैं हम। एक तरफ ज़िंदगी है हमारी, एक तरफ ज़िंदगी देने वाले, क्यों दोनों में से किसी एक को चुनने पे मजबूर करते हो। वो कहते हमें ये तो नहीं पता कि मुकम्मल होगी ये मोहब्बत हमारी, हमें ये तो नहीं पता कि मुकम्मल होगी ये मोहब्बत हमारी, पर जब कभी याद आया करेगी तुम्हारी दिल को, ये कहकर फुसला लिया करेंगे हम कि उसका गम नहीं हमें जो हकीकत में ना हुआ हमारा, ख्वाबों में भी कौन सा हम उसे छू पाते थे। हमने कहा जनाब ज़रा हमारी भी सुनते जाओ, इन हालातों से कुछ यूँ मजबूर से हैं हम, अपने ही रिश्तों में कुछ यूँ उलझे से हैं हम। इश्क का वादा कर ज़िंदगी भर का निभा ना पाए, ये फितरत नहीं थी हमारी, पर शायद यूँ ही मिलकर बिछड़ जाना किस्मत थी हमारी। वो बोले अरे अजीब हो तुम, जब इश्क से डर लगता है तुम्हें तो क्यों कभी ज़माने को कभी हालात को बदनाम करते हो। हमने भी कहा आखिर अलविदा कहना था तो क्यों बेकार में दिल ज़ाया करते हो। वो कहते कि तरस जाओगी तुम हमारा दीदार करने के लिए। ये बात चुभी ज़रूर हमें उनकी, पर समझाते किस तरह उन्हें कि मोहब्बत जिस्मानी नहीं रूहानी है हमारा। ज़रूरत नहीं है हमें उनके जिस्म की, उनकी यादें काफ़ी हैं हमें दफनाने के लिए। जिस्म की कोई कीमत नहीं होगी, पर क्यों रूह को मुर्दों के भाव बेचने की बात करते हो। चलो जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, मुंडेर पे खड़े अब किसकी राह तकोगे। सामने मिलकर भी नज़रअंदाज कर दिया करेंगे हम, पर रात की खामोशियों में तुम्हारे नाम की दुआ किया करेंगे हम। थैंक यू। ओके, कुछ फंकी नाम है, फेलिस फेला नाम का, तो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फेलिस फेला गाइस। फेलिस फेला मेरा एक दोस्त है, भाई है अपना पीयूष। उसको भी ऐसा ही लगता है, उसको लगता है कि मतलब औरतें जो होती है ना, विमेन। तो एक बार पीयूष मेरे पास आया, दिस इज पीयूष भैया, कोई नहीं, पीयूष इधर से आ गया, पीयूष आया। क्या यार जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो। क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया। नहीं यार लड़की यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं यार, लड़कियां समझती नहीं, हम कितना प्यार करते हैं लड़कियों को। तो मैंने सोचा यार हो सकता है इसके साथ धोखा हुआ, मतलब मेरे भी क्रश है यार, मेरा भी दिल तोड़ा लड़कियों ने, हो सकता है इसके साथ हो सकता है ऐसा हुआ। देन अभी पीयूष की शादी हुई 2 महीने पहले, तो पीयूष मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है भाभी को। तो सबसे पहले तो पीयूष सुबह उठते ही भाभी के 2 प्यार भरे तमाचे लगाता गाल पे, बहुत प्यार से। और फिर क्या करता है वो, कभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है जैसे पीयूष, तो फिर वो क्या करेगा कि मतलब बहुत ही प्यारी अच्छी गालियाँ, बहुत ही प्यार से। इंटेंशंस बुरे नहीं है उसके, डोंट गेट हिम रॉन्ग, बहुत नेक लड़का है, इंटेंशंस बुरे नहीं है, मन में बहुत प्यार है। बट तो फिर क्या हुआ, लेकिन लड़कियां लोग यार समझती नहीं है प्यार। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप बताइए, हाँ निकिता तू बता, जैसे मैं अभी आऊँ तेरे को और प्यार से ऐसे बाल पकड़ के यार स्टेज पे लेकर आऊँ, तो तुझे कैसा फील होगा। देखो हो गई ऑफेंड, कितनी जल्दी ऑफेंड हो जाती है यार, कितनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो तुम लोग। कितने सेंसिटिव, मतलब ज़रा सा कोई थप्पड़ मार दे प्यार से, कोई बाल खींच के मतलब ऐसे दीवार में मार दे तो तुम लोगों को बुरा लग जाता है यार। फीलिंग समझो ना, उसकी फीलिंग समझो। तो एक बार क्या हुआ,
पीयूष को किसी बात पे बहुत ज़्यादा प्यार आया अपनी मतलब भाभी के ऊपर। तो होता है यार, कभी कभी आता है मर्दों को प्यार आता है बहुत ज़्यादा। तो प्यार प्यार में उसने मतलब 4th फ्लोर से धक्का दे दिया एंड भाभी इज गॉन, लाइक फॉर रियल, फनी नहीं है, हंसो मत, सीरियस, भाभी इज गॉन। मतलब मर गई, प्यार नहीं समझी। आर यू गेटिंग? कितने इनसेंसिटिव हो यार तुम लोग। तो फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी, विमेन प्लीज अपने अंदर मत रखो, प्यार दिखाओ। आपको भी प्यार आता है, आप प्यार दिखाओ, पूरा दिखाओ, झाड़ू चप्पल जूता कुछ मिले, गो हैड, शो योर लव, बी अ लिटिल सेंसिटिव, प्यार करो यार, प्यार करना सीखो। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, please welcome Simran. Hello, I am Kritika Gaur from BJMC 3rd semester, and the name of the poem is Fly So High. So my idea behind this poem was, once upon a time I was sky watching, and there was one of those birds who fly really high. Okay, have the bird's eye view of the beautiful city, roam around freely, no time slots, no deadlines. Yeah, we all want to have that life, right? So, but who knows what the flyer needs? So let's find out. Up in the sky, they fly high, taking a view of a bird's eye, sailing through the dense clouds and mountains, no matter what, who, or why. People tilt their heads up as they fly high and look amazed as they pass by, wondering how magnificent it must be, how royal it might feel to fly. Little do they know, it's not easy, because while they fly, no one could see them cry. They, at a height, fight alone with all their might, even when the wings don't comply. But all this while, someone they need to tell them that it's okay, I trust you all this while. But who will be there for a mighty flyer?
who will hear the cries behind the choir. It's there. Yes, it's there in my home, dear. It's called a family. Yes, it's our family. Thank you. कभी वक्त में बंध के फिर मुलाकात हुई तो वो आलम ही अलग होगा. कभी वक्त में बंध कर फिर मुलाकात हुई तो वो आलम ही अलग होगा. क्योंकि वक्त से बेवफा होके आखिर कौन मुकम्मल हुआ है मेरे दोस्त. Hello everyone, I'm Akshat Nagpal from BBA and I've been writing from quite a time, and this is the first poem recitation I'm to. So I have few English two-liners and Hindi two-liners each. So here's the Hindi one. चल उतार चल ये मुखौटा, चल उतार चल ये हंसी, चल अब आने दे तेरा चेहरा, चल अब आने भी दे वो उदासी. So here's the other one. चेहरों से घबरा जाए इतना भी कमज़ोर नहीं है दिल, चेहरों से घबरा जाए इतना भी कमज़ोर नहीं है दिल, आँखों में बसे गैरों से कह दो कुछ यादें लाएं. I'll go for English ones now. My feelings were dark, yet couldn't last an impression on your heart. My feelings were dark, yet couldn't last an impression on your heart. Maybe it was just mere smoke for you, but it went on burning me, my heart. So another one, the last one I'm going to recite, the English one, is a bit of on the intimacy inclined side. So here it goes. She would slip into my soul just by holding my hand. I don't want to invade her pants or lift her top. I want to go deeper than that. I'm going to leave marks on her body which her soul will cherish. I'm going to slip into her soul by just looking at her one day. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Ikshit. Now next coming up is Palak Gupta. I'm Palak Gupta, and today I'll share a very small incident with you all with the help of poetry. So it's titled as Let's Change Our Vision with a big question mark. So one morning I woke up dead, trying to deal with my melancholy. Lit a cigarette, breath out, and went to my balcony. Trying to be headstrong, but since I slept on my neck wrong, I tilted down and spotted a topic for 6th song. I spotted a pigeon with one leg, just like my vision after drinking the 8th peg. I had just woken up and this vision was way too odd. I asked myself if it's a pigeon or actually a monobod. I was wondering, how can he walk? The mighty creature bluntly answered, we are meant to fly, not to walk. When everyone asks me about something I don't have, I feel pity on them, like what a crap. It doesn't matter what you don't have, but it matters a lot when you have everything and still you can't utilize it. Your thoughts and your surroundings will ignore you, doubt you, and even criticize you. But your attitude towards it will compel them to resize you into a wonderful living being. Oh, its words hit me hard. It felt like I'm a retard. Standing on one leg, he looked much stronger than me. He then unlocked his wings beautifully with a willing key and flew in the sky, giving me a pleasant goodbye. And shouted from above, goodbye friend, make 2 tequila shots. That unusual incident turned me all blue. But the question is, did this change your vision too? Thank you. Next coming up is Medha Sareen. इतना ना लगाओ दिल से कि दिल चीरा जाए, इतना ना आंसू बहाओ कि फिर ना हंसा जाए. समझने वाले कम मिलेंगे समझाने वालों से, समझने वाले कम मिलेंगे समझाने वालों से. संभाल तो वक्त हर चीज़ से देगा ही, मगर अफसोस फिर वही हम फिर वही दिल. आज फिर लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो, खो गया था जो ज़िंदगी के दौर में, लगा लिया मैंने भी उसे गले से. फासले ही तो थे हमारे बीच, मिटा दिए सारे भुला दिए गम, बस ये है ज़िंदगी और इसके मुसाफिर हैं हम. ओके वो जाते जाते चले ही गए, हमारे नहीं किसी और के पास. हमने भी जाने दिया उन्हें अपनी खुशी के लिए, क्योंकि उनकी खुशी तो कहीं और थी, लेकिन हमारी खुशी थी उनके पास. They touch your body, rinse their hands, watch your skin, not their plans.
You let it in or let it out. Show your flaws, they don't fit in. You cry for them inside out. Why want acceptance? You're not God. The world might accept the things it has never seen, but not a human figure because they're not what they used to be. Thank you. अच्छा, ओपन माइक का मतलब होता है कि आप कितनी अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे अभी हमारी दोस्त ने काफ़ी अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस किया. सो द थिंग इज, लोग मेरे से पूछते हैं कि प्रफुल्ल भाई तुम आवाज़ कैसे निकाल लेते हो, जो मिमिक्री करते हो तुम, ये आवाज़ में कैसे परिवर्तन ला सकते हो तुम. तो मैंने उनको बताया कि प्रैक्टिस ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप मॉड्यूलेट कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट द ब्रेथ, द नेक एंड द पॉन्च, कपिल शर्मा शो वाला पॉन्च. ओके, सो तो अगर मैं अपने पेट में से आवाज़ निकाल दूँ तो आवाज़ बहुत ज़्यादा बेस वाली होती है, बहुत लो वॉइस होती है. इट्स विल बी लाइक हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस फ्रॉम द स्टमक. प्लीज़ आप लोग एक ट्राई करना चाहेंगे, एक बार जोर से हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन. ओके, 1 2 3. मेरी शायद ज़्यादा लाउड थी इससे. एक और बार 1 2 3 साथ में करेंगे. 1 2 3 हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन. ओके, सो अब जो ऊपर हाई पिच वाली वॉइस होती है, जो ये मिकी माउस की वॉइस है, जो बहुत ज़्यादा लो पिच में है. जो बीच की वॉइस होती है वो होती है गुफी को जानते हैं सारे जने यहाँ, कार्टून हम देखते थे. इट्स लाइक कफ with the breath, with the stomach, all these things together. So अभी मोटू पतली कौन देखता? मोटू पतलू बच्चे बड़े होंगे ही नहीं कभी, फर्स्ट ईयर वाले ही हैं ये सारे के सारे. ओके, सो थर्ड ईयर वाले भी हैं. हाँ, उन दोनों से तो एक्सपेक्टेशन थी मेरी. ओके, सो मोटू पतलू में जो वॉइस देता है, आपको पता है कि एक ही बंदा है जो सारी वॉइसेस देता है. तो उसमें जो मोटू की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा यू कैन से विद स्टमक एंड द नेक, नोज को थोड़ा बंद. ओके, अरे बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती. दैट अरे इसमें मैंने पेट का यूज किया. बड़े भैया नोज, दिमाग की बत्ती नहीं जलती, द नेक. ओके, यू वांट टू ट्राई गाइस, 1 प्लीज. ओके, 1 2 3. वाह, बहुत अच्छा किया. एक और बार ट्राई करते हैं, साथ में ट्राई करते हैं. ओके, द लाइन इज बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती. ओके, 1 2 3 गो. अरे बड़े भैया, लगता है मुझे आके लोगों से पूछना पड़ेगा. कोई बात नहीं, होता है, फर्स्ट टाइम में होता है, तो कोई बात नहीं. एक काम करते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं. The rickshawala. In the scorching heat of summers and even on the chilled winter morning, before the sun's up and we are still curled up in our beds, come the men with forgotten faces taking their places. They have a long day ahead to travel, to earn and to stay. These forgotten faces are famous just for what they do, what they have. Prancing on the map of the city, this lane to that lane, we keep on moving. What often moves with us are these rickshawalas, all ignored. Their job is not a child's play, asking for high prices, knowing that they are fooling one and their own condition, lands them to their public shaming. But who cares? They are just ignored figures, whom one can never remember or never forget at the same time. They don't even care to let the world know who they are, how do they look or feel. And for the world, they all look same, with their colorful rides decorated with stickers of Madhuri Dixit and Ajay Devgan. Sitting behind them is no less than an adventure. We all have a great time listening to the 90s songs that they play on their pocket radio. Pardesi jana nahi. At times also listening them complaining continuously about the less price we offer to them. Experiencing the raw smell of sweat and beedi coming out of them. Some of them, they earn for a living, and some to gamble and drink at night. No one does it for pride. Indians use their identity, their lifestyle to shame other people. Hey, rickshaw wala hai kya? Idhar aa. Their hard work often ignored. Even they are fine with all of this. They are fine with random chaps driving cars and calling them names every now and then.
with or without a reason. They are fine with it. They are just rickshawalas. They don't matter. Their identities, their names, their faces don't matter. Their ideas, their emotions, their conditions don't matter. What matters are the colorful rides decorated with stickers of Madhuri Dixit and Ajay Devgan and 90 songs that they play on their pocket radio. Every day we come across them, yet remember none. The next day we will come across them, yet we'll remember none. Thank you very much. So our next contestant is Lavneesh Rawat. हाय गाइस, आज मैं बोलने वाला हूँ हमारे लाइफ के एक ऐसे फेज़ के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा फेज़ था और हम ज़रूर चाहेंगे एक बार दोबारा से रिविज़िट कर सकें। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे, काम में ढीले और अकल के कच्चे थे। सुबह स्कूल जाना और शाम को खेलने ही जीवन के तो लक्ष्य थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। ना चिंता थी ना थी कोई जिम्मेदारी, सिर्फ कार्टून का समय याद रखना ही फिक्र थी हमारी। ना पैसे कमाने की होड़ थी ना अफसर बनने की दौड़ थी, ना होश था समाज का ना फिक्र थी ज़माने की। ज़रूरत थी तो बस एक बारी यारों से मिल जाने की। बचपन में भी जादू हुआ करते थे, रात को सोफे पर सोते और सुबह बिस्तर पर जगा करते थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। अब तो जादू ज़िंदगी में हो रहा है, जाने क्यों ऐसा लग रहा है सब खो रहा है। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। I'm Mahima Nagpal from BJMC course. मैं जो बोलने जा रही हूँ वो हम सबके लिए है। एट अ पॉइंट ऑफ लाइफ हम लोग सब अपने लाइफ से हार जाते हैं, हार मान जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बट देन हमें हमेशा फेथ रखने की ज़रूरत होती है। हमेशा अंधेरों में भी बस तेरा ही आसरा रहता है। तू है तो ही ये दुनिया चल रही है। तू ना होता तो क्या होता हमारा। तुझ में ही तो समाये हुए हैं हम। तू ही तो है एक जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तू ही तो रोशन करता है इस जग को। तू ही अंधेरों में दिखाता है उजाला। जब सब हार के बैठ जाते हैं तू ही तो रास्ता दिखाता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देते हैं तब तू ही तो सहारा बनकर खड़ा रहता है। जब टूट जाते हैं हौसले हमारे तब तू ही तो उन हौसलों में उड़ान भरता है। जब सब खत्म हो जाता है तब तू ही तो किरण दिखाता है आखिर। जब सब लुट जाता है तब तू ही तो वापस से झोली भर देता है। डूबे हुए व्यक्ति को तू ही तो किनारा दिखाता है ना खुदा। ए खुदा तू ऐसे ही दीपक जलाता चल, हम ऐसे उन्हीं दीपक से दिवाली मनाते चलेंगे। ए खुदा तू ऐसे ही रास्ता दिखाता चल, हम तेरी ही दिखाई राह पर चलते चलेंगे। ए खुदा हम तुझे कभी निराश नहीं करेंगे, तू हमारा साथ कभी न छोड़ना। ए खुदा तुझे शत शत प्रणाम। I believe that there is nothing in the world we cannot achieve. If we can think about it, we can achieve it. It's all in our mind. Whatever we believe, we become. Only if whatever we want to happen will happen only if we believe it would. Only if we put ourselves into it. Only if we devote ourselves to it. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, महिमा। और अब हम बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को जो कि है दिशा चोपड़ा। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको कभी ना कभी प्यार तो हुआ ही होगा और जिन्हें हुआ था कुछ लोग यहाँ पे प्यार में हैं और कुछ लोग यहाँ पे गम में अपने ब्रेकअप के बाद। तो इसी प्यार के नाम पे मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। अच्छा लगे तो फिर हूट कर देना, ना लगे तो भी कर देना। मुझे याद है वो रोज़ शाम को हम दोनों का टकराना, वो किस्मत का हम दोनों को मिलाने की साजिश करना, वो गर्मी के मौसम जो तेरे साथ गुजारे थे, वो ठंडी हवाओं के झोंके जो तुझे अक्सर मेरी बाहों में सिमटवाते थे। आज भी याद है मुझे वो बारिश की बूंदों को तुम्हारे जिस्म को चूमना,
मेरा हक छीनते थे, और फिर जो तुम मुझे मनाया करते थे। वो कस्में वादे याद है क्या तुम्हें जो मुझे कभी दिखाए थे? वो झूठे साथ रहने के ख्वाब जो बड़े ही प्यार से तुमने कभी दिखाए थे। वो फरेबी वादे ही आज मुझे मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं। कभी मुस्कुराहट था और आज तू ही अश्कों का सबब है। मुझे याद है वो लम्हे जब तूने इश्क इज़हार किया था, पर वो लम्हे अब सिर्फ एक याद है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पत्थर दिल में समाई हुई मोहब्बत है तू। पता नहीं क्यों मुझे आज भी याद है तू। हाँ, आज भी याद है तू। थैंक यू Disha, thank you so much. So ladies and gentlemen, we have our today's guest of honor, Miss Him Shweta and Ahmed Faraz. So give a big round of applause, guys. सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी सिद्धार्थ सर का फॉर कॉलिंग मी हेयर, एंड अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैंने लिखना स्टार्ट किया था, बचपन से ही मैं लिख रही हूँ, लेकिन पहले मैं इसे एज अ हॉबी लिखती थी। मैंने इसको थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट किया 10th क्लास में, जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड आई वॉज वेरी बोर्ड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि मेरे पास खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय टीवी के और रेडियो के। उस टाइम यूट्यूब तो होता नहीं था कि आपने कुछ भी टाइप किया और तुम वो सुन लो। टेलीविज़न से मैं बहुत बोर हो चुकी थी, तो मैंने, और रेडियो पे जो आता है वही सुनना पड़ता है। तो देन आई थॉट, क्योंकि बॉलीवुड के सेम सॉन्ग्स चले जा रहे थे, एंड देन आई थॉट कि बॉलीवुड के पास कुछ नहीं है सिवाय सेम टॉपिक, सेम थीम, सेम कॉन्सेप्ट के, वो सेम बात बताते हैं हर जगह। तो मैंने सोचा मैं खुद के गाने लिखना स्टार्ट करूँगी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन सॉन्ग्स एंड आई स्टार्टेड कंपोजिंग दैम। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड यहाँ पर कुछ पोएट्स को मैंने सुना अभी, और कुछ बातें मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देख के पढ़ना बिल्कुल बंद करो, क्योंकि आपको कोई मना नहीं करेगा स्टेज पे आने के बाद कि आप देख के मत पढ़ो, लेकिन उससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता। सो प्लीज़ स्टॉप, देख के पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो भी लोग लिखने को अपना पैशन मानते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने लिखने से कुछ भी एक्सपेक्ट बैक कर रहे हो, कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप अपना पैशन नहीं कह सकते। आई यूज़ टू गो टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर पोइट्रीज़। अभी मैं खुद के आर्टिकल्स लिखती हूँ, खुद की स्टोरीज़ लिखती हूँ ऑन माई ओन ब्लॉग, एंड आई एम अ फ्रीलांसर एज वेल। तो खुद की चीज़ें लिखते लिखते मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे भी गई, एंड वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। कुछ वीडियोस मेरी अपलोड की थी कुछ प्लेटफॉर्म्स ने, जिसमें से एक वीडियो पे 1 मिलियन तक व्यूज़ आए थे। अनदर वीडियो रीच टू अबाउट 4.7 मिलियन व्यूज़। थैंक यू। तो वहाँ पर द मेन थिंग इज़ कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा कि मेरी वीडियो को इतने लोग देख लेंगे, एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आप अपने काम से कि मुझे कुछ ही रिटर्न में देगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो अलग बात है, वहाँ पे तो लोग बोलते ही ये हैं कि हम जॉब कर रहे हैं बिकॉज हमें पैसे चाहिए, हम कमाई के लिए जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पैशन को अपने आगे ले जाना चाहते हो तो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि जो लोग अपने काम से एक्सपेक्ट करते हैं वो कभी उन लोगों से कम्पीट ही नहीं कर सकते जिनका लिखना पैशन है। क्योंकि जब इंसान अपने पैशन के साथ लिखता है तो वो उतनी सच्चाई से लिखता है, उतने इमोशन से लिखता है। और आई बिलीव कि जब पैशनेटली कोई लिखता है ना, तो वो खुद नहीं लिखता, कोई और लिखवा रहा होता है, कोई और लिख रहा होता है उसके थ्रू। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, फेम एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल को मैं कुछ पैसे कमा पाऊंगा इससे, तो आप कभी भी उन लोगों से कम्पीट नहीं कर सकते, उन लोगों को आउट ड्राइव नहीं कर सकते जिन्होंने लिखना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उनके अंदर से निकल रहा है, क्योंकि उनका पैशन है। तो एक पोइट्री है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, बट उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप सबसे। हमारा दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कितने लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पॉसिबल है? बाकी सब मानते हैं कि पॉसिबल नहीं है थॉट्स को कंट्रोल करना। तो मैं उन सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वैसे तो कॉलेज में पूरे साल कभी पढ़ाई नहीं करते,
लेकिन एग्ज़ाम से एक रात पहले ऐसा क्या हो जाता है जो तुम पूरे साल का सिलेबस एक रात में ही ख़त्म कर देते हो? तब कैसे थॉट्स कंट्रोल हो जाती हैं? तब कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? तब कैसे फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती जो पूरे साल का सिलेबस तुमने एक रात में कर दिया? तो थॉट्स को कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसी से रिलेटेड है मेरी आज की पोइट्री। मैं बेसिकली फ़िलोसफिकल कंटेंट लिखती हूँ और थोड़ी डीप पोइट्रीज लिखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना मेरी पोइट्रीज लोगों को समझ नहीं आती होंगी, बट अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि लोग मुझे पसंद करें या फिर वो मेरी पोइट्रीज़ को समझ सकें, क्योंकि आई राइट बिकॉज आई इन्जॉय इट एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लिख रहे हो, अगर आप इन्जॉय नहीं करते लिखने को और सिर्फ इसलिए लिख रहे हो क्योंकि संडे को एक इवेंट है, वहाँ जाना है और प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, अगर आप उस चीज़ की वजह से लिख रहे हो तो वो बात निकल कर नहीं आएगी आपके काम में। अगर परफॉर्म कर रहे हो तो भी और अगर लिख रहे हो तो भी इन्जॉयमेंट इज़ द मेन थिंग। इन्जॉयमेंट बिल्कुल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई राइट बिकॉज आई एन्जॉय राइटिंग। तो शुरू करती हूँ। खोया है तू किस ख्याल में, उन गुजरे लम्हों के मलाल में, या कल को मेरा क्या होगा इस सवाल में। खोया है तू किस ख्याल में, सुना तो बहुत है जो बीत गया उसे भूल जाओ, सबक लो उससे आगे को बढ़ जाओ, पर पहन के बीते कल को कपड़ों की जगह बसा लिया है भूत को खुद में अधीन की तरह। अधीन होता है पोजेस्ड एंड भूत से यहाँ पर मेरा मतलब है भूतकाल। मैं जनरली अपनी पोइट्रीज एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बट बिकॉज आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ, आप लोगों को कुछ बताने सिखाने आई हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी आज। तो पहन के बीते कल को कपड़ों की जगह बसा लिया है भूत को खुद में अधीन की तरह। यादें सिर्फ बुरी नहीं पर अच्छी भी, वो कोई फिल्म का दृश्य है या कोई बेकार का विषय, किसी गाने की धुन, किसी बात पुरानी में गुम तुम हमेशा रहते हो, विचारों की लहरों में बहते हो, कैसे पाओगे कुछ जिंदगी में जब तुम खुद ही खोए रहते हो। अब क्या होता है ना, कुछ लोग अगर पोइट्री के एंड तक ये मानने भी लग जाएं कि हाँ थॉट्स को पॉसिबल है कंट्रोल करना, तब भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करनी ही क्यों है। अगर कर भी सकते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक रात में पूरे साल का सिलेबस कवर कर सकते हो, तो अगर उतना ही तेज़ आपका दिमाग हर मोमेंट पे चलने लग जाए तो दुनिया में कौन सी चीज़ है ऐसी जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना। तो उसी के लिए कहा था कि अरे माना बहुत बुरा हुआ होगा साथ तुम्हारे, पर नदी सा है तू खत्म नहीं हुए हैं तेरे किनारे। माना मुश्किल है वो सब भुलाना, पर कोशिश करेगा जितनी आसान उतना होगा उसे हराना। कोशिश तो तूने कभी की ही नहीं इस दिमाग पर लगाम लगाने की, आदत तूने ही तो डाली बातें पुरानी से दोहराने की। बस एक आदत बदलनी है, बस एक आदत बदलनी है, हार कर गुस्सा न हो, समय लगता है काबू उसे करने में सालों से जिस पे काबू न हो। क्योंकि कई बार जब हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करना अगर स्टार्ट भी कर दें तो क्या होता है कि गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हर 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद तुम्हें रियलाइज़ हो रहा होता है कि मेरा ध्यान तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस बात से गुस्सा होना। तो वहाँ पर बस गुस्सा नहीं करना, उसी के लिए लिखा था कि गुस्सा करने से जो है आपकी थॉट्स जो हैं आपको और ज़्यादा आती रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी। जानती हूँ वो बीता कल खींचता है अपनी ओर, पर तुझ में क्या दम नहीं कि काट सके उसकी डोर। वो अड़ा है जिद पर तो तू भी अड़ जा, खींचता है खींचने दे तू भी गड़ जा, और लौट के आ जा आज में वर्तमान के राज में। लौट के आ जा आज में वर्तमान के राज में, जहाँ कोई शिकवा नहीं बीते कल की, जहाँ चिंता नहीं भविष्य के फल की। देख अभी इस क्षण को, तेरे आसपास रखे कण कण को, सुन हर आवाज़ को, महसूस कर अपने लिबास को। ले महक इस हवा की, देखना फिर तुझे ज़रूरत न होगी किसी दवा की। क्योंकि आज में ताकत है उतनी ही, कमज़ोरी जितनी है भूत और भविष्य कालों में। न फंसा खुद को इन अनदेखे जंजालों में, लोग देख भी न पाएंगे तुझे डूबता इसके छल में। तू धंसता ही चला जाएगा इन ख्यालों के दलदल में। ये दलदल ये छल जो डरा कर रखता है, याद करा के उसे जो हुआ ही नहीं, जो हो रहा है उसे भुला कर रखता है।
चाहत में उसकी जो नहीं है तेरे पास जो है उसे भी व्यर्थ बना कर रखता है। मैं ये नहीं कहती कल के लिए कुछ छोड़ो ही मत, मैं कहती हूँ उसके लिए खुद को तोड़ो तो मत। जहाँ 2 पल का बस हक रखता हो वो तुम्हारे विचारों में, हर एक पल हर एक विचार उसकी तरफ मोड़ो तो मत। जानती हूँ थोड़ा ज़रूरी है कल का सोचना, ज़रूरी इतना भी नहीं कि बलि दे दो अपने आज की, अपनी शांति की, सेहत की, अपनी हंसी की, परिवार के हक के वक्त की। अरे भाड़ में जाने दो ऐसे काल्पनिक दृश्य को, अरे देख लेंगे आने दो भविष्य को। एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, याद तुम्हें यही पल दिलाएगा, लगेगा तब कि वो भी क्या दिन थे, पर आज अभी तो तुम फिर ख्यालों में गुम थे। जाग जा अब कर वश में इस बुद्धि को, जाग जा अब कर वश में इस बुद्धि को, चलाना था तुझे इसे ये तुझे चला रही है, चलाना था तुझे इसे ये तुझे चला रही है, खुली आंखों में भी तुझको ये सुला रही है। जब इंसान एक्चुअल में जाग जाता है तो उसको अवेकनिंग कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने लिखा है कि खुली आंखों में भी तुझको ये सुला रही है, तू जान इस समय को यहाँ कोई डर नहीं, पहचान इस लम्हे को यहाँ कोई दर्द नहीं। तू जान इस समय को यहाँ कोई दर्द नहीं, पहचान इस लम्हे को यहाँ कोई डर नहीं। यहाँ न कुछ खोने का गम है न कुछ पाने की चाहत है, जीना सीख जा आज में यहाँ बस राहत ही राहत है। और लौट के आ जा आज में वर्तमान के राज में, जहाँ कोई शिकवा नहीं बीते कल की, जहाँ चिंता नहीं भविष्य के फल की। सो हियर इट इज़ एंड थैंक यू। तो कंट्रोल अगर आप करने लग जाते हो पहले अपने थॉट्स को, उसके बाद वो समय आता है जब आप पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो उस लेवल पे बैठे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो स्टार बन चुके हैं। वो लोग जो पहनते हैं वो फैशन बन जाता है, वो जो बोलते हैं वो आपकी थिंकिंग बन जाती है। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग उस लेवल पे अगर पहुँचे हैं तो क्या अपने थॉट्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। उनका इतना टाइट स्केड्यूल होता है, वो खाना वही खाते हैं जो हेल्दी हो, हम लोगों की तरह नहीं जब भी देखो जंक फूड खा लिया, जो मर्ज़ी खा लिया। तो जब तक आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।